দৰ্শকসকল আমি পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল জিমান ব্লগছলৈ। দৰ্শকসকল আজি আমি ঘৰতে মুৰ্গীৰ খাদ্য এটা প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰণালী আমি লৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াতে দৰ্শক কি আছে আমি আপোনালোকক জনাই দি আছোঁ। আমি গাঁৱতে বিচাৰি পোৱা কিছুমান সামগ্ৰী দি আমি এটা দানা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ লৈছোঁ। ইতিমধ্যে কলপাত আমি মিহিকৈ কাটি ল'ব লাগিব আৰু এই কলপাতখিনি দৰ্শক বঢ়িয়াকৈ কলপচলাৰ লগত মিহল কৰিব লাগিব কাটি কিনে। বৰ্তমান আমি সজনাৰ পাত আমি মিহিকৈ কাটি ল'ব লাগিব। কিছু পৰিমাণে সজনাৰ পাত কাটি লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ আঠিয়া কলৰ কলপচলা হ'লে ভাল হয় বুলি মানে এটা আমি পাইছোঁ। গতিকে আঠিয়া কলৰ পচলাটো আনিছোঁ আৰু সেইটো মিহিকৈ কাটি মোটামুটি 4-5 বিধমান বস্তু মিক্স কৰিব লাগিব। ইয়াত লগত ভাত থাকিব, কলপাত থাকিব, সজনাৰ পাত থাকিব, কলপচলা থাকিব। এইখিনি বস্তু লগ কৰি এটা ঘৰুৱা মুৰ্গীৰ দানা প্ৰস্তুত কৰা হ'ব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে। আমিও এনেধৰণে চাই কিনে বনাইছোঁ। আমি একচুৱেলি প্ৰশিক্ষণ লোৱা নাই বা আমাৰ নিজামতেও আমি কামটো কৰা নাই। এইবিলাক ইউটিউবতে দেখিছোঁ আমি যেনেধৰণে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু আমি এইকাৰণে দেখুৱাইছোঁ দোস্ত, যদি ইয়াতে আমাৰ ক'ৰবাত কিবা ভুল ভ্ৰান্তি আছে আপোনালোকে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব লাগিব। কাৰণ আমি যিহেতু নিজে ফাৰ্ম এখন আৰম্ভ কৰিছোঁ, গতিকে ফাৰ্ম এখন কৰাৰ লগে লগে বহুত কষ্ট টকা পইচা জড়িত হৈ থাকে। গতিকে দোস্ত আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি শিকাৰ কাৰণেহে বনাইছোঁ, যাতে আমাৰ যদি ক'ৰবাত ভুল আছে বা কিবা যদি মানে আমাৰ ভুল আছে তেনেহ'লে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব। এই দোস্ত কাটি আছে বৰ্তমান কলপাতখিনি ভালদৰে আগৰখিনি কলপাতৰ দৰে মিহি কৰি ল'ব লাগিব। কাৰণ মুৰ্গীবিলাক বৰ্তমান সৰু আছে, 26-27 দিনত মুৰ্গীবিলাকে তাৰমানে এই ডাঙৰ বস্তু গিলিব নোৱাৰে দোস্ত। সেইকাৰণে সৰুকৈ কাটি ল'লে ভাল হয়। আৰু এনেকৈ সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ যাতে সিহঁতে তাৰমানে গিলিব পাৰে। এইবাৰ সজনাৰ পাত কাটিব। সজনাৰ পাতখিনি ভালদৰে ধুই ল'ব লাগিব প্ৰথম অৱস্থাত, কাৰণ কিয় বিচা থাকিব পাৰে আৰু বিচাৰ যদি কিবা কাৰণ বিজালটো মুৰ্গীৰ পেটত যায় তেতিয়াহ'লেতো আৰু ক'বই নালাগে। গতিকে আপোনাৰ পাতখিনি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ আমি বাল্টিং এটাত পানী লৈ পেলাই। তাৰপিছত আপোনাৰ এতিয়া এনেধৰণে পাতটো তাৰমানে ঠানিৰ পৰা একলা কৰি ল'ব লাগিব। তাৰপিছত কিচকৈ কাটি দিব লাগিব। তাৰপিছৰখিনি আৰু ক'ব নালাগে দোস্ত। আগত দিয়াৰ পিছততো আৰু সিহঁতে গুলি মাৰা দিব, সেইটোতো খাটাং। কাৰণ আপোনালোকক আমি দিয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাম। এইবাৰ আমি কাটিম কলপচলাটো লোৱা হৈছে। কলপচলাটো একদম সৰুকৈ দিলে ভাল হয়, তাৰমানে ইহঁতে সৰু যিহেতু গিলাত সুবিধা হ'ব, যাৰ কাৰণে কলপচলাটো সৰুকৈ দিয়া যাব দোস্ত। এইবিলাক খোৱাৰ বিনিময়ত কি হয়, দানাটো সিহঁতে সদায় খায়ে থাকে, তাতে আৰু শুকান দানা, তাৰে পিছত পানী খালে ভিজে। মাজে মাজে যদি দোস্ত এনেকৈ কিবা এটা যদি ঘৰুৱা দানা দিয়া হয় সিহঁতে তাৰমানে খায়ো ভাল পায় আৰু ডাঙৰ হওঁতে সোনকালে ডাঙৰ হয় বুলি কয়। শিল ভৰাইতো ওজন কৰিলে নহ'ব, খাদ্যৰ দ্বাৰাই ওজন কৰিব লাগিব। और दोस्तों उसके बाद जब हम ये सब माल मिला के जो है मुर्गी को देंगे, वो लोग ऐसे खाने जाएंगे कि तुम देखते ही रह जाओगे। बहुत अच्छी तरह से खाता है बेचारे लोग, कैसे दाना खाता है, दिन भर दाना खाता है, सूखा हुआ दाना खाता है। तो उन लोगों का मन नहीं लगता है भाई, बार बार दाना ही खाना पड़ता है। इसीलिए जो है ये सब मिला के देंगे ना, जैसे कि सजना के पत्ते और आपकी जो कला के जो पत्ता होता है और कलपसला जो हमारा होता है ना, ये सब मिला लिया ना, इसको जो है आगे देने से ये लोग बहुत मज़ा करके खाएगा। और उसके साथ साथ पानी भी मिल जाएगा। केला के अंदर तो पानी होता ही है ना, तो ऐसे हम सब मिला के देने के लिए तैयार कर रहे हैं। देखते रहिए और थोड़ी देर बाद हमारा वीडियो क्लोज आ जाएगा, इसलिए थोड़े टाइम और वेट करो और देखते जाओ दोस्तों। ये सब मिलाने के लिए गांव में थोड़ा घूमना पड़ता है, जैसे कि केला हमारा है नहीं, फिर भी हम दूसरे जगह से लाते हैं। और सजना की पत्ता वो भी खेत के मैदान की वहाँ जो होता है ना, वहाँ से लाता है। और दोस्तों ये सब काटने के लिए हमको एक चाकू चाहिए, जिसको हम कटोरी कहते हैं, वो चाकू चाहिए। और लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये पत्ते और पसला के अंदर बाहर हो या क्या हो, कीड़े मकोड़े होता है ना, तो वो सब का जो जल होता है ना, जिसको हम बिजाल कहते हैं, वो सब लगने से बीमार पड़ सकता है। इसलिए धुलाई करने में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है।
हम लोग भी वैसे ही किया। लेकिन दोस्तों ये सब खाने के बाद और क्या क्या उन लोगों का जो क्या क्या रिएक्शन या एक्शन आता है, हम उस चीज़ों में भी ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि खाने के बाद इन लोगों का जो सिम्टम होता है, जैसे कि सर्दी जुकाम में लहसुन का काम करता है, वैसे आदा में भी कुछ विटामिन है, वैसे इसमें भी है कुछ विटामिन जो पहले से ही हम लोग पता चला है। क्योंकि केला की पत्ता तो हरा रंग का होता है, तो हरा रंग में बहुत कुछ होता है, मिनरल, निगेटिव, आपका हीमोग्लोबिन, ऐसे बहुत कुछ होता है पानी में। तो पानी तो केला में रहता है। उसके बाद जो है सजना के पत्ता, उधर तो बाप रे बाप विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, बहुत कुछ है। और साथ ही आपका भात रहेगा इसमें, जो हमारा चावल का भात बनता है ना, तो उसी में तो प्रोटीन रहता है, हम लोग को पता है ना। तो बहुत सारे चीज़ मिला के देंगे हम, और लोग कैसे खाएगा हम ये भी दिखाएंगे। और दोस्तों समय ज़्यादा नहीं है वीडियो बनाने में, क्योंकि सब लोगों का हर समय टाइम नहीं होता है ना, इसलिए आप लोगों का भी ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए बहुत लंबा नहीं करते हम लोग वीडियो। तो इसको जो है अच्छी तरह से भूनना पड़ेगा। जो भात मिला के ये सब भून रहे हैं ना, तो इसको अच्छी तरह से मिलाना होगा। इसीलिए दोस्तों मिक्सिंग में पूरा ध्यान देना पड़ता है। देखो ये ज़ोर से कर रहा है, ताकि इसका जो लड्डू होता है ना भात का, वो टूट जाता है। उसके बाद जो है पूरा खाने के लिए लायक होता है। एक प्रकार कहने के लिए ये तो मसाला बन गया है दोस्तों। ये सोचो ये कुकर में दिया जाएगा, 2-3 सीटियाँ मार देगा, उसके बाद नमक और मसाला कुछ डाल के खाने के लिए आदमी को ही लायक होगा शायद। मैं कभी खाया नहीं, फिर भी मेरा मन लगता है ऐसा होगा मतलब। लेकिन हम ये मुर्गा को खिलाएंगे जो ऐसे भून रहे हैं, अभी तैयार हो चुके हैं दोस्तों। मतलब हाथ सफाई कर रहे हैं ना, तो सोचिए हमारा बन गया ये मुर्गी का दाना। देखो ये एक बर्तन लिया है ना, इसमें डाल रहे हैं। हाँ हो गया दोस्तों, और हम ले जा रहे हैं। अभी देखो हम ले जा रहे हैं। अरे छुलबुली बुलबुली आ जाओ, तुम लोग के लिए दाना तैयार हो रहा है। देखिए दोस्तों हम ले जा रहे हैं इसको। ये हम फार्म हाउस के अंदर चला जा रहा है दोस्तों। ऐसा ही है हमारा फार्म हाउस, हमने खुद बनाया है मेहनत से। देखो दोस्तों आ रहा है, ये लोग एक एक करके आ जाएगा दोस्तों। जैसे दौड़ने की प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं उन लोग, ऐसे दौड़ के आ रहा है। आपको तो दिखाई दे रहा है ना। देखो थाली के ऊपर, थाली के नीचे, हर जगह केवल मुर्गी ही और मुर्गी देखने को मिला है। बहुत खूबसूरत अच्छा नज़ारा है। मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये खाने के लिए माँ बाप तो है नहीं इन लोगों के पास, लेकिन देखा इन लोगों ने कितने अच्छी से खा रहा है। लेकिन क्या थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बर्तन थोड़ा छोटा है हमारा, बड़ा करना पड़ेगा दोस्तों। ये लोग खा के पी के, हम उड़ने के लिए भी जगह नहीं दे रहे, क्योंकि उड़ने से इन लोगों का वज़न कम हो जाता है। हमको ऐसा लगता है, हम किसी ने नहीं कहा, लेकिन हमको ऐसा लगता है उड़ने का जगह जो होता है ना, उसमें थोड़ा वज़न कम हो सकता है। इसलिए खा के पी के सो जाना, फिर खाना, फिर खा के पी के सो जाना, फिर खाना। जब तक के लिए बेचने का टाइम नहीं आएगा, उन लोगों को कष्ट करना नहीं चाहिए। एकदम आराम से खा के पी के सो के, कुछ होगा तो हमें तो पता लगेगा ही लगेगा। जैसे सर्दी जुकाम, नाक की भरभराई, मुंह से उबाल रहे हैं, ऐसे प्रॉब्लम हमको जब देखेगा, फार्मेसी वाले से दवाई लेना तो ज़रूरत है ना, तो लेके आना पड़ेगा। अभी देखो दोस्तों ये सब मसला हमें जो बनाया है, इतने अच्छा से खा रहा है कि सोचा नहीं था ऐसे खाएगा। क्योंकि पहली बार खिलाया है इन लोगों को, आज सिर्फ आज ही खिलाया है, लेकिन आज ही उन लोगों को पसंद है। इसलिए दोस्तों हम हफ्ता में 2 बार या 3 बार ये दाना भी खिलाएगा। और ये ज़्यादा प्रोटीन रहता है ना, ज़्यादा विटामिन रहता है, इसलिए ये दाना हमेशा खिलाना अच्छी नहीं होता है। इसलिए थोड़ा धीरे धीरे खिलाएंगे।
और दोस्तों 1 महीना के बाद हो जाएगा, इन लोगों को बेचने का टाइम आ जाएगा। और हमारे असम का जो पाठशाला बरपेटा का जो हमारा स्थायी व्यापारी है, उन लोगों को हम बात करेगा और माल दे देगा। फिर दोस्तों नया माल आएगा और नया माल का वीडियो बनाएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो में हमारा शिक्षा बढ़ता है। आप लोग जो कमेंट करता है ना फार्मर लोग, तो उन लोगों से तो हमारा सीखना पड़ेगा ना, क्योंकि आज 200 है, कल 400 है, परसों दिन 1000 भी होगा। इसलिए हम लोग को सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ये फार्म आइटम क्या है 1000 का, और 1000 करना ही हमारा ज़रूरत होगा। तो दोस्तों वीडियो तो हम लोग बनाया है, आप लोग मतलब फार्मर लोग हमारा वीडियो देखकर जो कुछ तो बोलना ही होगा, क्योंकि आप लोग सीनियर हैं, हम लोग को सिखाना पड़ेगा। और हम लोगों को वैसे ट्रेनिंग लेने का टाइम भी नहीं मिलता है और अलग अलग काम करना पड़ता है, इसलिए हम लोग वीडियो के ज़रिए कुछ ट्रेनिंग भी लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ताकि दूसरे को भी हम बोल सकेंगे एक दिन। इसलिए आप लोग हमारे साथ जोड़ते रहिएगा। विशेष करके फार्मर लोग जो हैं, हमारे पूरे देश का फार्मर लोगों को हमारा रिक्वेस्ट है, हमारे साथ बनी रहिएगा। हम भी आप लोगों के साथ जोड़ने के लिए कोशिश करते ही रहेंगे, क्योंकि आप लोग हमको आप लोग हर तरह का और गैस ये मुर्गी का जो दाना था वो थोड़े थोड़े कम होते जा रहा है, क्योंकि वो लोग खा के कुछ सोने के लिए भी जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो बस इतना ही। आज तक हम लोग इजाज़त चाहते हैं, और दूसरे वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी समय इसी स्क्रीन पर। तब तक के लिए बाय।